Assalamu alaikum. This is Rabia Kamran on behalf of Chalo Padho with Rabia. And this is paper of 10th class and question number 2, past paper 2, 2024. It's written over there, attempt either part A or part B of question number 2. या तो आप part A solve करोगे या part B solve करोगे, and both the questions are having marks 4. Okay, so let's get started. First question, let me read it. This is find the least common multiple. You need to find out the LCM. Okay, you need to find out the LCM of the polynomial. This is the polynomial and this is the polynomial. Let's get started. Let me write it over here. P of x is equal to 3x cube minus 27x. Okay, and let me draw a line over there, and it's here q of x is equal to x square minus 6x plus 9. Okay, and let's get started. I need to convert it into prime factors. So let me take out 3x as common, and the rest of the terms x square minus 9. Okay, and this is 3 is the prime factor, x is the prime factor, and what about x square minus 9? This is the formula of difference of two squares, so I can write it like this: x minus 3 and x plus 3. Okay, so there would be 4 prime factors of px. Now let's get started. Qx is equal to this, and as you can see that I can write it like this: x square, 2 of the formula, and x first you will write it like this, and then the bracket, and then 3 square, and from 3 square I can write 3 over here, so that is 3. Okay, so we can close it as, जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और x से, तो 6x बन जाता है. It means that this is the formula of perfect square, so I can write it like this: x minus 3 whole square. This is the prime factor. There are 2 prime factors, x minus 3 and x minus 3, means 1 prime factor of qx. Okay, with power 2. Now let's get started with, I am going to find out LCM. So what is this LCM? LCM में हम तमाम जितनी भी terms होती हैं उनको एक एक बार लिख लेते हैं. Let me write it over here: x minus 3 and x plus 3. Okay, but the highest power of x minus 3 is square, so I will write here square. So let us see what is the E marking and image of better response. So you can see that they have solved the question till here the same which I have solved for you. ठीक है, उसके बाद इन्होंने काम क्या किया है कि पहले इन्होंने HCF निकाल दिया है. Why is it so? And then they have used this formula of LCM. As you know that LCM, if you multiply LCM and HCF, it would be equal to the product of your P polynomial and Q polynomial. Okay, तो ये प्रोडक्ट जो है वो इस प्रोडक्ट के इक्वल होती है. तो यहाँ अगर आपको LCM फाइंड आउट करना होगा तो HCF will go in the denominator of the product of PX and QX. They have done the same thing. Okay, so first they have found out HCF, and then they have divided product of PX and QX by HCF. So these are the 2 terms. यहाँ से यहाँ तक आप देखें PX है, यहाँ से यहाँ तक आप देखें QX है, and this is the HCF, and this would be cancelled by this. Okay, and this is your LCM which we have already taken out. अब हम देख लेते हैं इमेज ऑफ वीकर रिस्पॉन्स. यहाँ देखिए क्या गड़बड़ करते हैं बच्चे कि यहाँ इन्होंने कॉमन लिया, बिल्कुल ठीक, 3x यहाँ मौजूद है, बिल्कुल ठीक, बट यहाँ आपको डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स का फॉर्मूला ओपन करना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया विच इज़ रॉन्ग. यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको इन्होंने मिडल टर्म ब्रेक से सॉल्व किया. इट्स ओके, और ये इन्होंने यहाँ सही निकाला, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यहाँ आपका सब गड़बड़ हो जाएगा जब आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे. तो जब आपने यहाँ इसको सॉल्व किया और इससे LCM फाइंड आउट किया तो दैट इज़ रॉन्ग. बी पार्ट देख लेते हैं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की कौन सी वैल्यू के लिए दी एक्सप्रेशन
दिस द पॉलिनोमियल विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर प्रूफ करना है, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन से प्रूफ करेंगे. और लास्ट में आपके पास रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, दिस इज जस्ट लाइक सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ 16. ठीक है, या हमें ये बताना है कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कौन से नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें. 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, दैट वुड बी 16. जब आप इसको प्लस माइनस करते हो तो योर आंसर वुड बी 0. सॉरी, योर अगर आप इसको इससे कैंसिल करते हैं तो योर रिमाइंडर वुड बी 0. तो आपका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, दिस इज द रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपका जो 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, अदरवाइज नॉट. ओके, तो यहाँ हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि लेट मी राइट इट ओवर हियर. I am going to write it like this: x raised to the power 4, 4x cube plus 3ax square plus 16x plus 4a. Okay, so let's get started. How can you make this x raised to the power 4 by multiplying the same terms? तो आप x square को x square से multiply करो तो that would be x raised to the power 4. Let me write it over here: x square multiplied by x square, that is x raised to the power 4 with same sign. x4 ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. नाउ आई विल चेंज द साइन ऑफ x raised to the power 4 and that would be cancelled. ओके, अच्छा, अब हमें करना क्या है कि इसको तो हमने कैंसिल कर दिया है. अब इस स्टेप में आई विल write down the whole rest of the terms here. Okay, that is 16x. Let me write it over here, and this is 4a. Okay, तो जो एक्स स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया था, यहाँ हम एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे. ठीक है, तो दैट वुड बी 2x स्क्वायर. ओके, नाउ लेट मी राइट ओवर हियर. नाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस 4x क्यूब. हाउ कैन वी मेक 4x क्यूब बाय यूजिंग दिस 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर को किस चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज 2 ऑफ x. ओके, तो ये टर्म होगी. यहाँ हम इसको लिख लेंगे प्लस 2x. ओके, लेट मी रिमूव इट. 2x, जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट वुड बी 4x क्यूब विद द सेम साइन, एंड आई कैन कैंसिल इट. और इसी 2x को अगेन आप 2x से भी मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से, दैट वुड बी प्लस 4x स्क्वायर. हर टर्म एक्स स्क्वायर की टर्म हम इस तरह रखेंगे, इसी तरह एक्स क्यूब की टर्म के नीचे एक्स क्यूब की टर्म रखेंगे. आई विल चेंज द साइन एंड दैट वुड बी कैंसल्ड, एंड दिस इज, आई कैन राइट इट लाइक दिस: 3a minus 4x स्क्वायर. हमने कॉमन आउट निकाल लिया है यहाँ से x स्क्वायर, एंड देन नाउ 16x प्लस 4a. ओके, अच्छा भाई, अब यहाँ हमने क्या करना है कि जो 2x हमने यहाँ लिखा था जिससे मल्टीप्लाई किया था उसी को हम प्लस कर लेंगे. दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 4x. ओके, अच्छा, अब यहाँ देखिए कि अगर मैं x स्क्वायर की टर्म यहाँ x स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ, इस जगह अगर मैं x स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ तो 2 से मैं किस टर्म को मल्टीप्लाई करूँ कि 3a माइनस 4 बन जाए. तो इसका मेरे पास अभी कोई आंसर नहीं है, बिकॉज ये टर्म हम इस तरह नहीं बना सकते 3a माइनस 4. तो हम इसकी बराबर वाली टर्म देखते हैं. दिस इज 16x. 16x कैन नॉट बी मेड बाय यूजिंग 2x स्क्वायर, इसलिए कि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ x है. तो हम कोशिश करेंगे कि 2x स्क्वायर लेने के बजाय हम यहाँ पर 4x की टर्म को ले लेंगे. तो बाय विच नंबर शुड आई मल्टीप्लाई 4x टू गेट दिस 16x. तो मुझे 16x बनाना है, तो इसके लिए मैं 4x को कौन से नंबर से, तो दैट वुड बी 4. ओके, सिंपल 4, यानी एक कांस्टेंट नंबर 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. नाउ 4 2s are 8x स्क्वायर. ओके, एंड प्लस 4 4s are 16x, ताकि ये कैंसिल हो सके 16x. ओके, एंड प्लस 4 ऑल्सो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. प्लस 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 4 4s are 16. ओके, तो ये हमने कांस्टेंट 4 एक कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट नंबर 16 लिख दिया. नाउ आई विल चेंज द साइंस. दिस इज नेगेटिव, दैट वुड बी कैंसल्ड, एंड आई कैन राइट इट लाइक दिस: 3a minus 4, okay,
एंड -8, एक्स स्क्वायर कॉमन आउट हो गया है आपके पास, एंड यहाँ क्या आ जाएगा +4a -16, इन दोनों को साथ लिख लिया जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसको मज़ीद सॉल्व करूँ तो दैट वुड बी 3a -12 एक्स स्क्वायर +4a -16। मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि नीचे आपके पास जो भी टर्म आ रही है वो ज़ीरो आनी चाहिए। तो ये जो आपके पास टर्म आ रही है जिसमें a एक नंबर इन्वॉल्व हुआ है, x जो है वो आपके पास वेरिएबल है, तो दोनों जगह आप इस टर्म को और इस टर्म को अगर ज़ीरो रख देते हो तो ज़ीरो से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर इसको ज़ीरो कर देगा और ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो आपका आंसर भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ज़ीरो आंसर इसको यानी इस रिमाइंडर को ज़ीरो लाने के लिए आपने इस पूरी टर्म को ज़ीरो रखना होगा। तो लेट मी राइट इट ओवर हियर, 3a -12 is equal to 0 and a is equal to 12 by 3, 4s are, so a is equal to 4, okay. And now let's take 4a -16 is equal to 0, that is 4a is equal to 16 and a is equal to 16 by 4, 4s are 16, a is equal to 4. It means that both a's are 4 और आपका ये आंसर जो है ये दुरुस्त है और a जो है a का आंसर, और अगर आप a को इस में पुट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में तो आपके पास जो रिमाइंडर नीचे आएगा लास्ट में वो ज़ीरो बनेगा, ओके। तो अब हम देख लेते हैं रिस्पॉन्सेस फ्रॉम ई मार्किंग। लेट्स सी, ये देखिए जो आपका बेटर रिस्पॉन्स है सेम वो उसी तरह सॉल्व किया गया है जैसे कि मैंने सॉल्व किया है। वीकर रिस्पॉन्स देख लीजिए कहाँ मिस्टेक हुई है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से इन्होंने मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ठीक। इनके पास x4 आ गया, एक्स स्क्वायर को प्लस किया तो 2x² आ गया, इट्स ओके। बट हियर दे हैव डन मिस्टेक, 2x² के लिए इन्होंने x लिया। जब आप 2x² को x से मल्टीप्लाई करते हो तो दैट वुड बी 2x3, और यहाँ इन्होंने बनाया क्या है, इन्होंने 4x3 बनाया, वो भी नेगेटिव साइन, बाद में उन्होंने साइन चेंज की, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा 2x, अगर आप यहाँ 2x लेंगे तब ये 4x3 बनेगा। तो यही जो थी यही मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड हुई, और उसके बाद आपके जो यहाँ देखिए a की वैल्यूज़ भी डिफरेंट आई। इट मीन्स दैट कि आपका ये तरीका गलत है। तो ये आपका क्वेश्चन 2 का पार्ट B भी सॉल्व हो गया है, और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।